Hello students, today I am going to teach you how to make a notice. This is important for intermediate classes. At first I will read the passage. After that we will get the main points of this passage. Yes, the question is, read the passage given below and answer the questions that follow. नंबर 1 क्वेश्चन है कि इसमें मेक अ नोट on the base of our passage. What is the passage? Now I am going to read it. During my growing years, my siblings and I were taught, both at home and at school, to worship the photos and the idols of deities of our respective religions. When we grew a little older, we were introduced to scriptures like the Bhagavad Gita, the Bible, the Quran. We were told that there are a lot of life lessons to be learned from these holy books. We were then introduced to mythological stories through which we learned about ethics and morality. I also learned to be respectful towards my parents, who made my life comfortable with their love and sacrifice, and my teachers who guided me to become a good student and a responsible citizen. Much later in life, I realized that though we learn much from our respective scriptures, there is a lot to learn from our surroundings. This realization dawned upon me when I learned to inquire and explore everything around us. Sun, moon, stars, rain, rivers, stones, rocks, birds, plants, and animals teach us many valuable life lessons. No wonder that besides the scriptures, in many cultures, nature is also worshipped. The message that is transmitted is that of maintaining environment and ecological balance. People are taught to live in harmony with nature and recognize their divinity in there everywhere. Is there everywhere. Nature is a great teacher. A river never stops flowing if it finds an obstruction in the form of a heavy rock. The river water fights to remove it from its path or find an alternative path to move ahead. This teaches us not only to be nurturing but also to be progressive in life, keeping and fighting spirit alive. We learn a lot in nature's lab but are unwilling to comprehend it. Rather than being considerate to our surrounding and environment, we are being senselessly insensitive. Overcome with greed, we are destroying nature, the extent of which is so profound that we are frequently facing natural disasters like droughts, floods, and landslides. We refuse to accept that nature is angry with us. We forget that if the dam of patience bursts and the result is destruction. However, it is never too late to learn if we imbibe the life-giving, the nurturing aspects of Mother Nature. The quality of our life will improve dramatically. So, the students, now we have read this passage
नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ नोटिस। नोटिस कैसे बनाया जाता है देखिए। एज वी रीड दिस पैसेज वी गेट सम एस्पेक्ट्स फ्रॉम इट। दिस इज रिटन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर। टाइटल द इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंट रोल ऑफ नेचर इन आवर लाइफ। नेचर का हमारे जीवन में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो इसकी हेडलाइन हो गई, इसका टाइटल हो गया। अब बनाते कैसे हैं नोट देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा आप। नोट मेकिंग नंबर 1 हेडिंग देंगे आप। फर्स्ट पैरा से हमने क्या देखा और क्या सीखा। फर्स्ट पैरा से हमने ये सीखा इन चाइल्डहुड यानी बचपन में हमको क्या सिखाया जाता है। व्हाट आर वी टॉट, हमको क्या पढ़ाया जाता है। हम पढ़ाए जाते हैं, किसके बारे में पढ़ाए जाते हैं भाई। हम करते हैं वर्शिप। 1.1 कहेंगे वर्शिप ऑफ किसका, डेटीज, गॉड्स जिसको कहते हैं भगवान। और फोटोज आइडल्स, इनकी पूजा करने के लिए हमको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, जैसे थोड़े से हम बड़े होते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम, भगवद गीता, द भगवद गीता, बाइबल, कुरान। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ते हैं। और फिर 1.4 लिखते हैं इसको। और हम क्या, एथिक्स एंड मॉरलिटी, एथिक्स और मॉरलिटी के बारे में पढ़ते हैं। ये तो हमारे चाइल्डहुड में होता है। अच्छा, थोड़े से हम जब बड़े होते हैं तो तब हम क्या सीखते हैं देखिए। बड़े होने पर दूसरे स्टेज में देखिए, तो फर्स्ट स्टेज है सेकेंड स्टेज इन यूथ, जवानी में, या इन टीनेजर भी कह सकते हैं, किशोरावस्था में जब हम जवान होते हैं तो उसमें हम क्या क्या सीखते हैं देखिए। स्क्रिप्चर्स के बारे में सीखते हैं। लर्न अबाउट स्क्रिप्चर्स। 2.2 सराउंडिंग के बारे में सीखते हैं। लर्न फ्रॉम सराउंडिंग।
सराउंडिंग से सीखते हैं। और क्या क्या सीखते हैं? सन, स्टार्स, रिवर्स, सॉरी, मून, रिवर्स, रेन, रॉक्स, स्टोन एंड बर्ड्स, इन सब के बारे में और लिख देते हैं 2.4 में। रॉक्स, स्टोन्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। ये जानते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। प्लांट्स के बारे में भी, एंड प्लांट्स, इनके बारे में जानते हैं। अब थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं? अगली स्टेज में थर्ड पॉइंट बनाते हैं। जब हम और बड़े हो जाते हैं इन एडल्टहुड, यानी प्रौढ़ावस्था में कुछ और समझ हमारी आ जाती है, तो हम नेचर को समझने लगते हैं। 3.1 समझते हैं कि नेचर इज अ ग्रेट, इसको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में लिखा जाता है। नेचर एज अ ग्रेट, या नेचर, इतना भी नहीं करते हो तो खाली कॉमा कर दो इसको, नेचर अ ग्रेट टीचर। नेचर जो है एक ग्रेट टीचर होती है। और क्या समझते हैं हम? ये नर्च करती है, हमको नर्चर करती है। नर्चर, ग्रेट नर्चर, इसको हम ऐसे लिख देंगे, नर्चर्स। नर्चर्स अस, हम सबको पालती पोसती है। 3.3 प्रोग्रेसिव, जैसे नदी के बारे में अगर कहते हैं तो क्या है नदी? प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव है। और फाइटिंग स्पिरिट रहती है उसकी, फाइटिंग स्पिरिट, मतलब स्ट्रगल करती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करती है, यानी जीवन संघर्ष पूर्ण है कहने का मतलब। इससे ये सीखते हैं, जैसे नदी को रास्ता नहीं मिलता है तो क्या बनाती है वो? अलग रास्ता बना देती है। अगर नेचर का हम पालन ठीक से नहीं करते हैं, अब चौथे पॉइंट में हम इसको जाते हैं, ये भी हो गया आपका तीसरा पॉइंट। तो हम क्या करते हैं? चौथा पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में नेचर का ठीक से पालन नहीं करते हैं हम, ठीक से डिस्ट्रॉय अगर उसको करते हैं, इफ वी डिस्ट्रॉय नेचर, नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं तो रिजल्ट्स क्या होते हैं इसके? 4.1 में लिखता हूं मैं इसके रिजल्ट्स। हम फेसिंग कैलेमिटी, कैलेमिटी का फेस करते हैं, फेसिंग कैलेमिटी, कैलेमिटी। अब वो कैलेमिटी क्या होती हैं? जैसे ड्रॉट्स है, और
लैंडस्लाइड है, फ्लड है, बाढ़, ये चीजें आती हैं। अगर हम इसको ठीक से समझते हैं, पांचों पॉइंट लिखते हैं। नेचर के इंपॉर्टेंस, इफ वी अंडरस्टैंड द नेचर, या रेस्पेक्ट द नेचर भी लिख सकते हैं। इफ वी रेस्पेक्ट द नेचर, नेचर का रेस्पेक्ट करते हैं तो उससे हमको क्या लाभ होता है, देखिए। तो मदर की तरह वो हमारा पालन करती है। नर्चर एज आवर मदर। और 5.2 में हमारा जीवन क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। इसमें ग्रामर की कोई विशेष ध्यान नहीं देना है। ये तो मैंने आपके बना दिया है कि नोट ऐसे बनाया जाता है। आप समझिए कि नोट मेकिंग कैसे किया जाता है। इनको पढ़ करके हम पूरा एक आर्टिकल बना सकते हैं। तो ये है नोट मेकिंग। अब इसमें मैंने एक चीज आपको नहीं बताया, वो एक कोने में आप जो है यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे, जहां पर उससे आगे यहां पर जगह है, इतना ही है मेरे पास। तो इसमें जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं, जैसे ड्रॉट्स है सपोज, तो इसको मैं ड्रॉट को DRO लिख देता हूं। DRO। लैंडस्लाइड को भी LAN लिख देता हूं। और एक नर्चर को लिख देता हूं, NUR लिख देता हूं। तो इनको हमने कीवर्ड्स कहते हैं। इसको कीवर्ड्स, ये पहले ही ध्यान रखना है आपको कि किस तरह से लिखना है। कीवर्ड्स में हमने ड्रॉट को क्या लिखा, DROUGST, ड्रॉट को DRO लिखा। नर्चर, नर्चर को नर लिखा। और एक और है लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड को हमने LAN लिख दिया। बस ये जो है आपके शॉर्ट वर्ड्स हो गए। वर्ड्स को शॉर्ट करके लिखेंगे यहाँ पर। ये आपका एक नोट मेकिंग हो गया। ये 12th में भी आएगा और 11th में भी आता है। इसको ध्यान रखना है कि लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया। इसी तरह बनेंगे। नोट मेकिंग का मतलब ये है कि जैसे आपको लेक्चर दिया जाता है, तो लेक्चर में सारी चीजें आप लेक्चर के साथ यानी टीचर के साथ नोट नहीं कर पाते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको सुनते जाते हैं और नोट करते जाते हैं, जिससे आपके समझ में दोबारा रिकॉल करने के लिए आपको इजी हो जाता है। तो वही नोट मेकिंग है। तो ये आपका बोर्ड एग्जाम में, इस साल तो बोर्ड 12th में हटा दिया है, लेकिन अगले साल से फिर आएगा। ये 5 मार्क्स का नोट मेकिंग आता है। 1 मार्क का ये इसका हेडलाइन आती है, टाइटल आता है ये। और 2 मार्क का आपका समरी आती है। ये ध्यान देना है। तो इसको नोट मेकिंग ऐसे आप बनाएंगे। तो आपको ये अच्छा लगा होगा। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स हैं कि पैरा, अलग अलग पैरा है दिया गया है। इसमें एक वर्ड है इसमें, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये आ गया होगा समझ में आपका, कंप्लीट हो गया ये। इस पैरा में मीनिंग पूछे जाते हैं। जैसे गॉड्स का मतलब पहला है गॉड्स। गॉड्स को इस पैसेज में क्या लिखा गया है, डेटीज लिखा गया है। ये ढूंढ लिया हमने। सेकंड है एग्जामिन। एग्जामिन है,
इसको एक्सप्लोर लिखा गया है, एक्सप्लोर। थर्ड है, इसका एंटोनिम है रिसीव, रिसीव का एंटोनिम, सॉरी RECEI, रिसीव को प्राप्त करना यानी देना, गिव, गिव होगा। और अगला या प्रोवाइड भी हो सकता है। फोर्थ है, सिनोनिम है इसका भी, एसिमिलेट, एसिमिलेट। एसिमिलेट को इस पैसेज में लिखा गया है इम्बाइब, इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब आत्मसात करना, एसिमिलेट। तो ये मीनिंग इस तरह से 12th में भी आते हैं, 3 मीनिंग आते हैं वहां। और यहाँ पर समरी लिखने को नहीं आती है, 12th में समरी आई। तो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share with your friends it. Like and give your comment on the comment box. Okay, thank you.